So, hello, welcome to this channel, and we'll discuss the IR portion of it. So, in the mains, how the questions are being framed, what is the analysis, and basically हमें current को कैसे answers में लाना है, that will look. तो इसमें पहले हम देखेंगे कि वेटेज कितना है. IR का वेटेज रफली 50 मार्क्स है, विच आर काफ़ी मार्क्स है. बेसिकली यूपीएससी मेंस में होता क्या है कि 9th एंड 10th एंड 19th एंड 20th ये 10 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं और ये 15 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं. ये दोनों ये चारों आईआर पोर्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विल फोकस ऑन दैट. सो दिस इज दिस सिलेबस. India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings, effects of policies, politics of developed and developing countries, India's interest and diaspora. Important institutions, international institution, agencies and fora, structure or mandate. We'll focus on this topic today. We'll analyze it with PYQs and we'll see a question, a probable question, okay, as per the current happenings. So see, there is a list of questions. 2024 में पूछा गया था, 24 में 2 क्वेश्चन पूछे गए नेबरहुड से, 25 में कोई भी क्वेश्चन नेबरहुड से नहीं था, तो 26 में देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि नेबरहुड से क्वेश्चन पूछ लें. सो आई जस्ट रीड 2 क्वेश्चंस एंड I'll give you a sense of what is the analysis behind it. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. For the purpose of analysis, मैंने क्या किया है कि मैंने इसको डिवाइड किया है कि इसमें क्या की प्लेयर्स कौन है. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो when we talk about there are players मतलब US West, not US exactly but West, India, obviously India will be there and China is there. ठीक है, so ये 3 तो players हैं. What the question is asking कि जो West is fostering India's alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. अब ये समझ तो आ रहा है कि वेस्ट कुछ तो कर रहा है और कोई बहुत ही पॉजिटिव लाइट में तो स्टेटमेंट नहीं लिखी गई है. तो इसमें हमें ये देखना है कि इंडिया को इसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट, बेसिकली क्या इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं एंड व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट. अगर हम इसको इस तरह से एनालाइज कर लेंगे देन विल गेट अ सेंस ऑफ कि बेसिकली मेंस में वो पूछता क्या है. ठीक है, तो आफ्टर एक बार प्लेयर्स देख लिए कि ये 3 प्लेयर्स हैं, इंडिया, चाइना एंड दिस, लेट्स सी कि क्या मेटा एनालिसिस क्या है इसकी. फॉस्टर कर रहा है इंडिया को टू रिड्यूस डिपेंडेंस. नाउ डिपेंडेंस किसी की भी किसी पे होना is not a good thing. So dependence is not a good thing. So it is a negative attribute and this is an issue for us, for US or for anybody. On China's supply chain पे ही डिपेंडेंस है, तो एक उसका सब पार्ट हो गया. सप्लाई चेन अपनी बेसिकली रेजिलियंट होना चाहिए और डिपेंडेंस का ऑपोजिट पॉजिटिव क्या होगा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए. सप्लाई चेन पे डिपेंडेंस का उसका ऑपोजिट क्या होगा कि रेजिलियंट होनी चाहिए सप्लाई चेन. ठीक है, एंड अ स्ट्रेटेजिक अलाई इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव वर्ड, राइट, टू काउंटर इंडियाज China's political and economic dominance. So these both things are negative attributes. Political and economic dominance is not a positive thing, it's a negative attribute. तो अगर हम इस तरह से एनालाइज करें कि देर आर सम certain keywords which the UPSC has used and
कुछ तो मीनिंग है उस चीज़ का. डिपेंडेंस, ally, political economic dominance. ठीक है. So these are the keywords. Let's go to the second question. Discuss the geopolitical. Now I'll highlight straight away. And strategic importance of Maldives. Maldives is a player. For India, India is a player. With a focus on global trade and energy flow. I would further also discuss how this relationship affects India's maritime security, regional stability amidst international competition. Now you tell me, देखो geopolitical and geostrategic importance तो चलो it's a neutral word which we use. Now global trade and energy flow with respect to India, तो हमारे लिए सिक्योर होना चाहिए ना, ये हमारे लिए इशू नहीं होने चाहिए. तो दिस इज़ अ पैरामीटर जो कि हमारे फेवरेबल होना चाहिए. उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ इशू जिसमें हमारा अपर हैंड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. रीजनल स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. सो दीज आर द इशू दैट वी आर हैविंग. इसीलिए तो वो बोल रहा है कि क्या अफेक्ट होगा रिलेशनशिप में. ठीक है, ये इशू अफेक्ट है. एंड देन देर इज़ ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. ये न्यूट्रल सा वर्ड है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, बट स्टिल एक वर्ड है. ओके, लेट्स एनालाइज इट फर्दर. इंडिया इज़ अ एज ओल्ड फ्रेंड. अ फ्रेंडशिप एक अच्छी चीज़ होती है. इंडिया एक प्लेयर हो गया, श्रीलंका एक प्लेयर हो गया. ठीक है, एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. डिस्कस द रोल ऑफ रिसेंट क्राइसिस इज एन इशू. डोमेस्टिक या इंटरनेशनल in the light of preceding statement. ठीक है, moving on to the next. The US is facing an existential threat. Existential threat is an issue which US is facing in form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. So Soviet Union भी एक यहाँ पर player हो गया. So there are challenges. So जो तुम्हें एक 4 questions analyze करके you got an idea कि basically what I'm doing. तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि प्लेयर कौन है, व्हाट आर द इशू दे आर फेसिंग. ठीक है, बट एक डीपर एनालिसिस में हम देखेंगे वंस वी डू ऑल द थिंग्स कि देर आर सर्टन पॉजिटिव थिंग्स, और आई माइट कॉल इट कि प्रिंसिपल्स विच वी वांट टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, सारी स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी एस्टैब्लिश. ये सिर्फ बातें नहीं हैं, मतलब बातें तो हैं ही, बट बातों के साथ साथ दीज आर द थिंग्स विच एवरीबडी इज़ सपोज टू बी फॉलोइंग. कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो करें, वी आर सपोज टू डू दैट. ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बट स्टिल देर आर सर्टेन इश्यूज़ जो कि एक क्वेश्चन में पूछता है, एंड उनकी एक हम मैनिफेस्टेशन देखते हैं एज एन कि मालदीव्स में जैसे हमने देखा कि इशू हुआ. अभी हम देख रहे हैं कि US ईरान इशू है, एंड वी हैव आर इशूज़ विद द बांग्लादेश. ठीक है, सो दीज आर द मैनिफेस्टेशन. दिस वुड बिकम आर एग्जाम्पल्स फॉर द आंसर राइटिंग इट विल डू. ठीक है, अब जैसे if I just point out what are the things which we have to focus. Economic relation, positive surplus, trade surplus is an important thing. ठीक है, उसके बाद military power status is an important aspect. अब cross border terrorism is an, अब ये क्या है, issue है. Interference is an issue. ठीक है, now these are the players, SARC और ये सब player है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है एक प्रोजेक्ट मौसम, इसको हम अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसमें प्रोग्राम्स एंड उसमें आएगा. टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, दिस इज़ एन इशू इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. ये प्लेयर्स हैं. ठीक है, तो इस तरह से वी कैन मूव ऑन. ये सॉफ्ट पावर, ये हमारे एक प्रिंसिपल्स हो गए जिसमें स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. गुड विल एक अच्छी प्रिंसिपल है जिस पे हम दोनों कंट्रीज़
या कोई भी बायलैटरल इश्यूज या इवन मल्टीलेटरल थिंग्स आर वर्कड आउट। तो साउथ चाइना सी एक प्लेयर हो गया या एक लोकेशन होगी जहाँ पर मैरी टाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज़ एन इशू, राइजिंग टेंशंस। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या हुआ? नाउ दिस इज़ अ प्रिंसिपल which we want to achieve, which we want to have in our ideal life. ओके, इस तरह से ही चीज़ें हैं। अब ये प्रोटेस्ट बिकम्स एन इशू, ठीक है। एनीवे, अब गुजराल डॉक्ट्रिन इज इटसेल्फ इट इज़ अ प्रिंसिपल। सो बेसिकली इसको मैंने AI को दिया एंड आई फेड दैट इफ आई ब्रॉडली कैटेगराइज them into, I'll show you players, principles and issues and manifestation. So what we'll get, it is a analysis that would help you in the mains to write better answers. कैसे? See, पहले क्वेश्चन में इंडिया, चाइना और वेस्ट था। काउंटर बैलेंसिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये हमारे वैल्यूज़ हैं, क्योंकि काउंटर बैलेंस करना पड़ता है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी IR पढ़ा है तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए वी आर डूइंग काउंटर बैलेंसिंग। अब डिपेंडेंस इज एन इशू, चाइनाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस इज एन इशू, ट्रेड सरप्लस एंड दीज आर थिंग्स आर द इशू। सिमिलरली मालदीव्स के केस में मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड और एनर्जी फ्लोज बिकॉज सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन passes फ्रॉम देयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड कम्स फ्रॉम दैट एरिया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। these things are what are principle that we age old friend, historical tie, stability, these are the issues, ठीक है। key insights देख लेना। let's move on to the why we are discussing it, how can we use this into our main answer, right? ठीक है। अब देखो, हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर गए हैं सेशल्स। अब सेशल्स हमें पता है कि हमारे इंडिया के बिल्कुल यहाँ पे श्रीलंका यहाँ कहीं पे है, ठीक है। अब दिस बिकम्स इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर सेशल्स है एंड इट इज़ इन द बैकयार्ड ऑफ इंडिया, तो हमारी डोमिनेंस और हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, लेट्स सी हुआ क्या है। एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अंडरटेक अ स्टेट विजिट, जो कि वो लोग गए एंड उनकी गोल्डन जुबली पे उनको सेलिब्रेशन हुआ एंड he received awards and there were some controversy about it also. We'll not talk about that, but let's see what can be a probable question as per the PYQ analysis. See, the vision of Indian Ocean as the ocean of opportunity is central to India's regional diplomacy. See, I'll tell you इसी question में कि ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अ की वर्ड, अच्छी बात है। इट इज़ नॉट एन इशू, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल, नॉट एग्जैक्टली वन, बट ये सेंट्रल टू रीजनल डिप्लोमेसी ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इंडियन ओशन। इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया सेशल रिलेशंस, डिस्कस हाउ कॉपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, सी मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Maritime security is a positive thing that we need and we should secure it in our backyard. Sustainable development क्यों नहीं होनी चाहिए। And disaster resilience manifests. Disaster resilience manifests as a strategic advantage for India in the Indian Ocean region. तो 3 इश्यूज उसने हाईलाइट करे हैं। एक तो हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और डिज़ास्टर रिलेटेड इशू है डिज़ास्टर रेजिलियंस का। इन तीनों पे हमारा कोई कॉपरेशन हुआ है सेशल्स के साथ एंड उस पर ये सवाल पूछा गया है। सी, मालदीव्स पे सवाल पूछे गए थे, वी हैव सीन, तो सेशल्स पे भी सवाल पूछ सकता है कि सिमिलर IOR रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एनीवे, सी एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया सेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के साथ दिखाया हुआ है कि व्हाट वी हैव डन मैरीटाइम सिक्योरिटी में, व्हाट आर द थिंग्स विच वी मैनिफेस्टेड, and the sustainable development में shared prosperity, disaster resilience. This is not my point to give you all this, but see, होता क्या है कि जब आपको ये सब points सोचने होते हैं तो always think that there are positive issues, there are positive things, there are negative issues that needs to be addressed
with the help of certain principles that you should always focus on. ठीक है, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे बताने का. सो व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पर, तो हम डिफेंस के आर्किटेक्चर में हम कर रहे हैं कॉम्बैटिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, पायरेसी एंड ऑल. कोस्टल सर्वेलेंस कर रहे हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक्स को ओवरकम कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अजम्पशन आइलैंड को और ये सब चीज़ों को. उसके बाद जो ये चीज़ें हैं कि डोनर टू कमर्शियल पार्टनरशिप बन रही है हमारी. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट शेयर प्रॉस्पेरिटी में क्या है कि टेंजिबल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, फोस्टरिंग सेल्फ सस्टेनिंग ब्लू इकोनॉमी एंड DPI तो हम वी आर एक्सपोर्टिंग इट इन अ हैवी मैनर. अब डिज़ास्टर रेजिलियंस एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी के अरीना में CDRI के अंदर वी हैव कोलैबोरेटेड विद द सेशल्स. ठीक है, गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला है, सेशल्स ने दिया है. ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल डिफेंस कर रहे हैं. सिमिलरली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर आएगा. एंड सागर, देयर आर 2 कीवर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड हियर नाउ, कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर सिक्योरिंग ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, बाय ट्रीटिंग इंडियन ओशन नॉट मेरली अ थिएटर ऑफ कॉम्पिटिशन बट अ स्पेस फॉर शेयर्ड ग्रोथ. सी ध्यान दोगे तो the keywords I have used are the ones which are already being used in the UPSC questions. This will help you fetch more marks because the thought process is the same. Okay, India converts bilateral cooperation into multilateral strategic advantage across 3 core pillars that we are discussing. कि maritime में, क्योंकि क्वेश्चन ने उसने इस तरह से पूछा गया था. And the second one is sustainable development and shared prosperity. Third is disaster resilience and climate diplomacy. And then we'll conclude this. See, now we'll see some of the points, क्योंकि I don't want to reiterate what has been written there, but to make your mind open to the ideas that how we are going to write this and इसको use कैसे करना है basically. तो सेशल्स का क्या है कि 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर EEZ है. अब EEZ होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख सकते हैं कि वाइड EEZ है एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नियर SLOCs. ये तो पता ही होना चाहिए. कनेक्टिंग एशिया, अफ्रीका, यूरोप. ठीक है, दिस इज़ नॉट बिन टू बी, मतलब कि ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी याद ही है. हैविली इन्वेस्टिंग इनटू द डोमेन, इंडिया गेट्स द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. अब देखो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को हमने किन पिलर्स में, किन पॉइंट्स में खोला है. डायरेक्ट डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, तो डिफेंस की हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. हाउ वी आर पुटिंग आर, देखो यहाँ पे यूटिलिटी व्हीकल्स, 5 सेट्स ऑफ लेजर रेडियल क्लास बोट्स एंड इंडिया डायरेक्टली स्ट्रेंथन्स डिफेंस, सेशल्स का डिफेंस बाय गिफ्टिंग सिग्निफिकेंट एसेट्स. पेट्रोल वेसल्स दे देगा. तो ये डिफेंस की हम कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं. नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या होते हैं, देखो, जो कि पायरेसी होती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, ड्रग डिलीवरी और ये ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स स्मगलिंग, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग के बारे में. दीज आर द कीवर्ड्स. ये ऐसे ही नहीं लिख दिए, खुद से नहीं बने हैं ये IUU फुल फॉर्म. दीज आर बिन यूज्ड इन द ये एग्रीमेंट्स में वगैरह में यूज़ की जाती हैं. सो दीज आर स्टैंडर्ड वर्ड्स, सो यू शुड ऑल्सो यूज़ दैम. अब उसके बाद ये है कि एनहेंसिंग EEZ सर्वेलांस. ठीक है, सर्वेलांस एनहेंस करना है, मॉनिटर करना है, इंश्योर करना है, कॉन्स्टेंट काउंटर बैलेंस करना है चाइना को. ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग देयर. डीपनिंग करनी है मिलिट्री इंटरऑपरेटिबिलिटी को, कि अगर सेशल कुछ बता रहा है तो हम भी बता पाएँ एंड सेशल भी बता पाए ईजीली. कैसे कर रहा है ये. स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज वॉज रिसेंटली विजिबल ड्यूरिंग द सेशल्स 15th. ये तो बताया ही था कि 50th था कि असम रेजिमेंट इंडियन नेवी का मार्चिंग कंडीजेंट था और इंडियन मिलिट्री बैंड के साथ ये पार्टिसिपेशन हुई थी कोलैबोरेटिव. स्ट्रेटेजिक बॉटलनेक्स विद टैक्ट टू ओवरकम डोमेस्टिक पुशबैक ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक अजम्पशन आइलैंड बेस एंड इंडिया स्ट्रेटेजिकली पिवट्स टूवर्ड्स को मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स. तो बेसिकली उनको ऐसा भी नहीं लगे कि इंडिया ही ओन कर रहा है पूरा.
सो बेसिकली हम को मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं. दीज आर द वर्ड्स दैट वी शुड बी यूजिंग. ठीक है, सिविलियन नीड्स को, कोस्टल गार्ड एंड ये सब. लेट्स मूव ऑन टू. तो बेसिकली वी ओपनड अप आर डिफेंस वाला सेक्टर, कि बेसिकली हमने फ्री कुछ दे दिया. ठीक है, हम अब उनको एंगेज कर रहे हैं उनकी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को करने के लिए. हम उन्हें सर्वेलांस कर रहे हैं EEZ को सिक्योर करने के लिए. तो चाइना को तो हम चमका ही देंगे, बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल चाइना. अननेसेसरी प्रेजेंस IOR में बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद है वो. एंड हमें तो और भी नहीं पसंद. हम गए हैं साउथ चाइना सी में, नहीं गए. तो ये बदतमीज चाइनीज़ लोग डू दिस थिंग्स. ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस. तो इंटरऑपरेटिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि इंटेलिजेंस एक्सचेंज होगा तो इट्स हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, और बॉटलनेक टेक्स्ट से ये अच्छी इंग्लिश क्या लिखने का मतलब ये है कि बेसिकली कोई पुशबैक ना आए. क्या होता है कि हम सब कुछ बेच थोड़ी ना सकते. जैसे श्रीलंका का हम्बल टोटा पोर्ट लिया चाइना ने, तो पुशबैक तो होता ही है ना कुछ लोगों का. हालांकि उन्होंने दे दिया, वो तो बेशरम ही है. बट द थिंग इज़ कि हमें थोड़ा टैक्टफुली करना है. हमें ये लॉन्गर गेम देखनी है, नॉट अ शॉर्टर गेम जिसमें कि जस्ट अभी का हम देख रहे हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. अब दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के अंदर क्या है. देखो, टू प्रिवेंट बिग ब्रदर एंग्जाइटीज़ ना, दिस इज़ अ कीवर्ड. ये कोर कीवर्ड है भाई. बिग ब्रदर एंग्जाइटी क्या होती है कि हम ही करके देंगे, तुम्हें करके देंगे, पर बोलना नहीं है. बिना बोले हम करके देंगे, एंड ऐसा दिखाना भी नहीं है. टू बिल्ड रेजिलियंट लॉन्ग टर्म इंटरडिपेंडेंसीज, इंडिया यूटिलाइजेज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन एज अ स्ट्रेटेजिक टूल. जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दी, हम तो बहुत ही देते हैं. अभी कहीं पे भी इशू होता है, भले ही वेनेजुएला में अर्थक्वेक आ गया या समथिंग हैपेंड, विल गो एंड वी जस्ट, ये खाली बैठे लोग काम करेंगे ना वहाँ जाके. तो ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे खाली बैठे हैं वो, बट कहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली. सो फॉस्टरिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग ब्लू इकोनॉमी के लिए, भाई ब्लू इकोनॉमी में तुम SDG भी कोट कर सकते हो, तुम्हें याद है तो. एक्सपोर्टिंग, हाँ, DPI को तो फुल वे में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम. तो दीज आर द, देखो अब इसको सोचते कैसे हैं बताता हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो उसमें है कि डेवलपमेंट तो है ही, बट इट शुड बी सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल होने के लिए क्या होता है कि हमारी जो भी डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी कैसी हो, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो. इट शुड बी इकोलॉजिकल. इट शुड नॉट बी हैम्परिंग मोर ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या होगा, असिस्टेंस देंगे हम किस में, कि एक तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होगी. ये तो इतना अच्छा पॉइंट है भी नहीं है वैसे, बट हम दे रहे हैं इसीलिए लिखना पड़ा था. सेकेंड पॉइंट वुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा कि उनका डिजिटल इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं भाई. नाउ दिस इज़ अ गुड पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल पॉइंट से डेवलपमेंट आना, इट्स अ रिलेटेड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ ये ब्लू इकोनॉमी, बिकॉज सारी मैरीटाइम में ना एक पॉइंट कॉमन होगा कि भाई हम मछलियाँ बेचेंगे उठा के, कैच करेंगे फिर बेचेंगे, एंड ब्लू इकोनॉमी. और IUU को हम नहीं प्रमोट करते हैं, ये इलीगल, इस तरह की चीज़ें. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ हम ट्रांजिशनिंग टू अ कमर्शियल पार्टनर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड हम, ये तो ख्याल क्या, शिफ्टिंग डायनामिक फ्रॉम वन साइडेड डोनर रिलेशन टू अ रोबस्ट कमर्शियल पार्टनरशिप हम करना चाहते हैं. वन साइडेड नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए. लास्टली क्या है कि सॉफ्ट पावर एंड ग्रास रूट गुडविल बढ़ेगी. तो इंडिया cements its strategic influence through the cultural diplomacy, expanding ITEC, that is Indian Technical and Economic Cooperation Scholarship, training sessions, civil servants. ठीक है, इस पर गड़बड़ है. टू बिल्ड अ डीपली डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप. तो हम मल्टीपल फ्रंट पे काम करते हैं. इसको जब भी तुम तोड़ोगे, राइट डाउन कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है. ठीक है. अब जब सोचते हैं ना तो डेवलपमेंट होती है, एक इकोनॉमिक होती है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट होती है. ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बोल दो तुम इसे, एंड उसमें एक और ये पॉइंट जो लास्ट वाला था ना, ये पॉइंट डाल सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को उनको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग. ठीक है. एंड नेक्स्ट वुड बी द TPI, दैट इज़ यहाँ पर ही आएगा वैसे तो TPI. ठीक है. तो और क्या होगा, क्या कर सकते हैं पानी वाले देश, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट. दीज पॉइंट्स आर इनफ. आगे चलते हैं. डिज़ास्टर रेजिलियंस एंड क्लाइमेट. अब इसने क्या किया, एज अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, SIDS, ये स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, यू शुड यूज़ दैम.
सेशल्स फेसेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, देखो वही कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो था ना उसमें, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इंडिया टर्न्स दिस वल्नरेबिलिटी इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप कैसे बन रहा है, एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है क्लाइमेट इंटीग्रेशन को। सेकंड, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस मीन, ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप, ठीक है। थर्डली, डिप्लॉइंग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फंडिंग क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल डिफेंसेस। फिफ्थ, प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन बाय राइवल्स। नाउ दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ठीक है। देखो अब इसको सोचना कैसे है कि डिज़ास्टर रेजिलियंट एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी, एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशनलाइज करने का क्या मतलब है कि इस बेसिकली इसने क्या किया था, CDRI एक हमारा, ये हमारा तो क्या मतलब एक इंडिया लेड है बट ये प्रोग्राम, ये देखो यहाँ लिखा, ज्वाइन द इंडिया लेड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेशल ने ज्वाइन किया। अब पोजिशनिंग इंडिया एज द प्राइमरी प्रोवाइडर फॉर स्ट्रक्चरल एंड टेक्निकल क्लाइमेट एक्सपर्टीज़ इन द रीजन। तो बेसिकली हमारा रीजन है, यहाँ इंडिया है, यहाँ कहीं छोटा सा सेशल्स है, तो ये हमें हमको ही देखना है। कल को ये चाइना के साथ एंगेजमेंट्स रखेगा, वी विल बी फ्यूरियस अबाउट दिस। बेसिकली अगर स्ट्रेटजिक एंगल देखना है तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी ये काउंटर कर रहा है, तो वी हैव टू एंगेज लाइक दिस। एनीवेज, तो ये पॉइंट है, मेन पॉइंट तो ये है। अदर पॉइंट्स, रिकग्निशन ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप क्या है कि गार्जियन ऑफ ब्लू, ये कंट्रोवर्शियल अवार्ड जो दिया था ChatGPT से बना के, बट दिया था, वी कैन राइट दैट। अब रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, RE इंफ्रा बनाना है उधर, इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, बट वी आर गिविंग देम कि देखो सच एज सोलर माइक्रोग्रिड्स इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ कीवर्ड एंड इट इज़ अ प्रिंसिपल, हमें भी तो चाहिए, तो हम बोलते हैं उनको भी भाई तुम्हें भी तो चाहिए, ठीक है। डज नॉट डैमेज द फ्रेजाइल बायोडाइवर्स आइलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब कोस्टल डिफेंसेस क्या है, बेसिकली दे विल असिस्ट इन द आइलैंड वल्नरेबल, प्रोटेक्ट द वल्नरेबल कम्युनिटीज़ फ्रॉम राइजिंग सी लेवल, ब्लीचिंग को रोकेंगे, वहाँ पर भी मैंग्रोव लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो और राइवल्स को प्रिवेंट कैसे करें, अगर हम ही दे रहे हैं चीज़ें तो क्यों जाएगा वो चाइना के पास। इंडिया एक्टिवली प्रिवेंट्स अदर ग्रेट पावर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ SIDS नेशंस, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, टू गेन जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड्स। बेसिकली क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो ही तो अदर पार्ट्स को जगह मिलती है, दे कम एंड डू द इंटीग्रेट एंड देन उनका डोमिनेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है डोमिनेंस, इसीलिए बढ़ता है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग बट इन अ पॉजिटिव लाइट, ठीक है। फिर इसको कंक्लूड करते हैं, 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं IOR में। नॉट स्ट्रिक्टली मिलिटराइज करना है, हमें ओपन रखना है, बट सीमलेसली ब्लेंडिंग अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी विद सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस। 3 जो इम्पोर्टेंट पिलर हैं बेसिकली ये। अब तुम ये सिड्स वाला जो एजेंडा है ये मॉरिशस पे भी लगाओगे, क्योंकि क्या है ना, दिस इज़ अ कॉमन थ्रेड, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, और डिजिटल इकोनॉमी and infrastructure, humanitarian assistance, these things are common and which we will be applying in the Indian Ocean region के अंदर, ठीक है। इसलिए ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं जिसमें सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। अब ये हो गया तो मेंस का सवाल। अब देखो ये तुम्हें मैप दिखाता हूँ एक, सेशल्स यहाँ ना छोटा सा, ये रहा मालदीव्स, ये रहा अजम्पशन आइलैंड, अगलेगा एंड मॉरिशस, देयर इज़ मडागास्कर बड़ा आइलैंड है जो इस तरह से देखो ना। अब ये जिस हिसाब से UPSC जा रहा है, इनका कोई भरोसा नहीं किस तरह से पेपर बनाएंगे। लेट्स सी कि इनकी लोकेशन वी शुड नो एटलीस्ट एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में वी शुड सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक आइलैंड आर्किपेलागोस इन द इंडियन ओशन। अब देख के नहीं करना है। सेशल्स है, अजम्पशन आइलैंड है, डिएगो गार्सिया है, मॉरिशस है। ये भी न्यूज़ में था, ये भी न्यूज़ में था, ये तो अभी किया ही। और ये मॉरिशस कांड करता रहता है चाइनीज़ प्रेजेंस की वजह से। नाउ अरेंज द अबव लोकेशन इन द करेक्ट ऑर्डर, नॉर्थ टू साउथ, बिना देखे करना, एंड अपना आंसर को कमेंट सेक्शन में डाल दो, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल दिस, इस तरह की न्यूज़
एंड विल बी कनेक्टिंग टू द मोर डीपर एनालिसिस ऑफ मेंस, सिंस मैंने भी, छोड़ो ये सब नहीं बताते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।